read this. Could, should, would, which is chapter 12. Could, should, would have different meanings in English and are translated in several ways in French. यहाँ पे लिखा है when could refers to a single unique actions in the past, the passive composer of pouvoir is used. So basically, what they're trying to say, although there's one word could, right? I could not do it in the past, for example. I could not read more books in the past, but I'm reading them now. It's in the past. I could not do the homework today. Okay? Past. I passed again. Yes. Oh, अच्छा. there. I could write a letter to someone, for example. I'm saying it in the present, right? I could write a letter in the past to someone. Uh, so depending on how could is used, we translate it to different things in French. English, mein the word is only one, but French, mein the translations are many. Is what I'm trying to say. Okay. Okay. So, for example, when the action is single and unique, just like passe composé ka pura definition, when is it used? When the action is like very short, like in the past, and is limited. Tab and has finished. Sorry. So we use Finished. passe composé. So j'ai pu, tu as pu, il a pu. इसको pu बोलना है. Pu is the past participle of pouvoir. ठीक है? तो nous avons pu, vous avez pu, elles ont pu. ठीक Pew है? Pu, or poo. pu. जैसे Pew. to Okay. is not like to, it's to. Right? वैसे you का Pew. pronunciation is not you वाला you, it's you. Okay? यहाँ पे क्या लिखा है? पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, n'a pas pu lui parler. He उसके साथ didn't talk बात to him. नहीं कर पाया था. ठीक है? He could not talk to him. जैसे अभी I gave you an example the same. J'ai pu la convaincre. मैं उसको कन्विंस कर पाया था. I managed to convince him, her, la convaincre. ठीक है? Nous n'avons pas pu y aller. We could not go there. कैसे बोलोगे? Nous, we could not go there. Nous n'avons pas pu y aller. Okay. We could not go there. ठीक है? तो il a pu obtenir les fonds. Il a pu obtenir les fonds. He was able to. He succeeded in managing. He could basically यहाँ पे बोल रहा है. He could He obtain could the. obtain a reference. Okay. ठीक है? यहाँ पे लिखा है next use case which is when could refers to description or a habitual action. जब habitual action आता है तो past में what tense Imperfect. हम perfect है यहाँ. तो यहाँ पे can you read these? ये सारे के सारे कौन से verb है? What verb are we talking about? Pouvoir. All of this is pouvoir. ठीक है? पहले Okay. मैंने उसका past से composé देखा. इसका जो past participle रहता है it's pu. ठीक है? और pu. उसके साथ मैं avoir लगाऊंगा प्रेजेंट में क्योंकि ये avoir verb है. ठीक है? तो यही किया है यहाँ पे मैंने बस प्रेजेंट में avoir लगाया, बस pu लगाया. This is past से composé of it and the translation of this is to. ठीक है? Okay. Then I'm reading इसका imparfait. imparfait कैसे बनता है इसका? imparfait ending के साथ, right? Imperfect. Okay. तो je pouvais, tu pouvais, elle pouvait, nous pouvions, vous pouviez, elle pouvait, il pouvait. ठीक है? इनका जो pronunciation है it's the same. pouvait. Same. Pouvoir. इसमें pouvions, pouviez. ठीक है? एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका. कौन से केसेस में when the action that I'm describing I could or could not do is habitual. For example, en ce temps-là, les femmes ne pouvaient pas voter. At that time, the women could not, Different. they could not vote. So क्या voting was a action which was like happened and stopped? No, it was a habitual action. They used to vote every year or every 5 years, right? So they could not vote then is translated. English में देखो सारे sentences ऐसे ही लिखे हुए हैं. Could not या could. But French में the translation is multiples. As I said in the starting, could has multiple translations in French. ठीक है? Depending on वो क्या use case है, I will translate it to either passé composé or imparfait Imperfect. or conditional. I will come to that. Okay.
Can you read the next example? Which one? C'était ये वाला करते हैं, last वाला. Après la mort de sa femme, il ne après la- pouvait, il ne pouvait plus écrire. Plus il ne écrire. il ne pouvait plus écrire. Okay? He could not write anymore. He could no longer write. यहाँ पे लिखा है. It could translate to he could not write anymore. उसकी जब वाइफ की डेथ हो गई, उसके बाद he could not write. ठीक है? It's a habitual action वो करता था, but he could not write it anymore. अगर मैं लिखूंगा इसको, il n'a pas pu, désolé, écrire. ये मैंने कौन से टेंस में यूज कर लिया pouvoir? Past composé. Past tense है मतलब. बाकी जगह प्लू लिख देता हूँ to make the sentence. écrire simply. Il n'a plus pu écrire. अगर मैं ये लिखता तो इसका मतलब है वो एक इंस्टेंट पे लिख नहीं पाया था बिकॉज ऑफ उसका पेन नहीं चल रहा था. फॉर एग्जाम्पल, मान लो उसकी इंक खत्म हो गई, देन इन दैट केस il n'a plus écrit car blah blah blah. He couldn't write. He could not write because his pen's ink got finished, something like that. ठीक है, तो वो instantaneous thing है when I will use passé composé. When the action is habitual, जो करता था, I will describe it using Imperfect. Okay. यहाँ पे when could refers to an idea of the future, a hypothesis, which is very 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 important. Idea of future, hypothesis, ठीक है, a suggestion or a request. It could have done something. जैसे अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, I could write a letter to someone, for example. मैं कर सकता हूँ, तो it's a hypothesis. It's a hypothesis or it's a suggestion, कुछ भी बोल सकते हो. Okay. Or what's an hypothesis? Give me an example of hypothesis. It could rain today. It's an hypothesis. I don't really know if it will happen or not. Right? So, Okay. उस cases में, all of these cases will use conditional. और कौन सा वर्ब पढ़ रहे हैं? We are still in the same word. Pouvoir. Pouvoir का conditional is pour. P-O-U-R-R plus the imperfect ending. क्योंकि Imperfect. Future sample से ले रहे हैं और imperfect से ले रहे हैं. Yes, the sample stem is pour because it's an irregular verb. ठीक है, तो पूरे एंड यहाँ पे भी पूरे. तो je pourrais, tu pourrais, il elle pourrait, nous pourrions, vous pourriez. ठीक है, again विचार का pronunciation is the same. Same. And this one is different. Okay. यहाँ पे क्या लिखा है? Note the following examples. Pourrais-tu me prêter le livre dont tu m'as parlé? क्या तू मुझे could you lend me a book, जो बुक तू मेरे को बताया था उसके बारे में, वो मेरे को बोरो करने के लिए दे सकता है? prêter is to lend. Okay. लोन होता है un prêt. लोन होता है ना बैंक वाला. un prêt या फिर un prêt bancaire. bancaire, sorry, से भी नहीं आएगा. bancaire. un prêt bancaire मतलब बैंक लोन सिंपली. यहाँ पे लिखा pourrais-tu, अगला वाला एग्जांपल देखते हैं. pourriez-vous m'expliquer? ये कौन सा यूज केस है? हमने इसमें बहुत सारे वो देखे, हाइपोथेसिस, सजेशन और रिक्वेस्ट. ठीक है, यहाँ पे कौन सा यूज केस है आउट ऑफ दीस 3 or 4? pourriez-vous m'expliquer? It's a request. pourriez-vous me donner un verre d'eau? एक ग्लास ऑफ पानी मिलेगा क्या मेरे को? It's a request. ठीक है. I think yeah. ये जो next वाला है, je pourrais vous prêter ma voiture. What is this? It's not a suggestion. It's not a request. It's not a hypothesis. It's the idea of the future. Okay. ठीक है. Alright. समझ गए? ये जितना है, और जो अपन ने आई थिंक 11th चैप्टर में जो पढ़ा था कोड का, दैट्स ऑलमोस्ट द सेम. मतलब वही है, सेम ही. वही है, बस हम अलग से पढ़ रहे हैं बिकॉज इट डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट इन अ वे. ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अलग से दिया हुआ है. तो मतलब उसमें और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, वही है, यही है.
ठीक है। अब देखो, वी कुड नॉट गो ऑन अ वेकेशन। अब तुम्हें मैंने बताया, यही चीज याद रखनी है कि कुड का ट्रांसलेशन इंग्लिश में तो कुड ही रहता है, बट फ्रेंच में देयर आर 3 वेज आई कैन डू इट, पासे कंपोजे, अम्पार्फे एंड कंडीशनल। ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन वो सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, आई विल हैव टू ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंगली। गलत भी कर दोगे तो पासे बहुत कंपोज। बड़ी दिक्कत नहीं आ जाएगी। ठीक है, वो सेंटेंस सेम ही साउंड करता है ऑलमोस्ट, बट फिर भी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कैटेगराइज इट द बेस्ट। वी कुड नॉट गो ऑन वेकेशन, हम छुट्टी पे नहीं जा पाए थे, क्या एक हैबिचुअल एक्शन है? नहीं। क्या ये एक टाइम खत्म हो गया एक्शन है? हाँ, पासे कंपोज है। तो पास से कंपोज यूज करूंगा तो न्यू। नुपू पीयू। देखो, न्यूज आवो प्यू होगा तुम्हारा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब नेगेशन से बिना वाला। तो ना वो पा, ना वो पा प्यू आले ओ वाकांस, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, आवे पू क्यों? क्यों नहीं होगा? देखो, वी कुड नॉट गो। pouvoir का पास्ट पार्टिसिपल, ओके। उसके साथ नु, नु के साथ आवो, ये तुम्हारा पास्ट से कंपोजर बन गया। ओ हाँ। ओके। आया ना, नुजावो हाँ हाँ, प्यू। उसके बाद ऑक्सिलरी मैं, लगाना है। ओके। उसके साथ मैंने क्या डाल दिया? नेगेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? नेगेशन इज ऑलवेज अराउंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब। if it's a complicate if it's a it's a complex verb which has two parts, मैं फर्स्ट पार्ट के अराउंड नेगेशन को रैप कर दूंगा। तो यहाँ पे नेगेशन कहाँ चली गई? न पा आवों के अराउंड चली गई, देख रहे हो? तो पू तो पहले से ही पासे कंपोज में ही है ना, टेंस। पासे कंपोज है, बट नेगेशन और पासे कंपोज अलग अलग चीजें, समझते हो? नेगेट नेगेट कर रहा हूँ मैं किसी चीज को। मैं पासे कंपोज दो टाइप से बता सकता हूँ। आई कुड नॉट गो टू द पार्टी, आई कुड गो टू द पार्टी। क्या डिफरेंस है दोनों में? आई कुड गो टू द पार्टी, आई कुड नॉट गो टू द पार्टी। नेगेशन ही तो है दोनों में, बस डिफरेंस। हाँ। तो यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ। नू, अभी मैंने बताया नू जावों pu aller aux vacances, फॉर एग्जाम्पल ये होता सेंटेंस। ओके। हम जा पाए थे वेकेशंस पे बिकॉज ऑफ छुट्टी, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी बोल दो उसके आगे। ठीक है, बट मेरे को क्या चाहिए? वी कुड नॉट गो टू दी वेकेशन, तो नेगेशन तो लगाना पड़ेगा ना, नॉट तो है हाँ, उसमें। नहीं, नेगेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके बात कर रहा हूँ। अगर ये सेंटेंस रॉन्ग है क्या? नु नपू पा आले ऊ वैकेशन। नू न पू, नेगेशन इसके पू के बीच में, हाँ। पू कौन सा वाला? स्पेलिंग बोलो पू के। पी पी यू, सॉरी, पू नहीं, पी यू पा आले ऊ वैकेशन है कश्मीर पू भी। ऐसा क्यों होगा बताओ? कौन सा टेंस है ये? लाइक वी कुड नॉट गो। देखो, पू सिंपली इज नॉट गुड, नहीं होता है गुड। To is just the past participle of pouvoir. Pouvoir, yes. To exist ही नहीं करता है, is what I'm saying. अलग से, अलग एक वर्ड ओके। ही नहीं है फ्रेंच में। ओके। ये हमेशा प्यू आएगा तो उसके साथ ऑक्सिलरी आना ही पड़ेगा। कभी देखा है पास्ट पार्टिसिपल अकेला अलग से घूम रहा है? टेंस कॉन्जुगेट करोगे तो ऑक्सिलरी भी तो लगाओगे। ओ ओके, एक मिनट ऊपर थोड़ा स्क्रॉल, पहला वाला पासे कंपोज वाला, हाँ श्योर। प्लीज, थैंक यू। ओ ओके, ठीक है, इसमें है ही ऑक्सिलरी है। ओ ओके, अगर उसमें ऑक्सिलरी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ ओके। देखो ये हाँ, प्यू, मैं वही बोला, उसमें ऑक्सिलरी आगे ऊपर तो पढ़ा नहीं था, फिर इसमें ऑक्सिलरी क्यों लगा दे सेंटेंस? यहाँ पे वही बोल रहा हूँ, avoir प्लस प्यू में avoir का कॉन्जुगेशन तो करना ही करना है। जे आ avons यस avec, यस, ओके ओके। ठीक है, वैसे ही सेम चीज पासे यहाँ पे। कंपोजर में करना है, और किसमें है ऑक्सिलरी? बस उसमें ही है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी दो और केसेस पढ़े ना। सेकंड वन है व्हाट, हम अम्पाफे और ऑक्सिलरी कंडीशनल का में नहीं क्या? है। ऑक्सिलरी, सॉरी, हम और कंडीशनल प्रेजेंट दोनों में ऑक्सिलरी का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सिंगल वर्ड ओके। है दोनों के दोनों। यस। हाँ ओके, अब क्लियर हो गया।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिक्कत थी ये वाले सेंटेंस में? नू न, ऑक्सिलरी मिसिंग, हाँ बराबर। यहाँ पे ऑक्सिलरी आएगा नू ना वो। अब क्योंकि ना मैंने तो पता था पू यहाँ पे आ ही नहीं सकता, पा पहले आना पापू पड़ेगा। नू ना वो पा प्यू आले, पू नहीं हुआ, हाले प्यू प्यू आले, ब्ला 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 जो भी है उसके आगे, ठीक है। नू ना वो पा प्यू आले, ओके। ओके। अब देखो, could we start eating? Could we start eating? What is it? Is it a suggestion, a request, or idea of the future, or a hypothesis? रिक्वेस्ट, तो प्रेजेंट कंडीशनल। It's a suggestion. Yes, it's not a हाँ request. It's a suggestion. Similar वो, but doesn't matter. कौन से उसमें यूज होगा, तब भी कौन सा टेंस यूज होगा? कंडीशनल। कूवरे, POURRAIS, न्यू स्टार्ट मॉन्जे। So start मौजे कैसे लिखोगे? Start मौजे, याद दिया। देखो वर्ड होता है कमौन से, कॉमन और से, हाँ कॉमन से। कमौन से के साथ हमेशा एक preposition आता है आ। Pourrions-nous, commencer à, and then उसके बाद तुम्हारा नॉर्मल वाला मौजे, and कॉमन then से, question mark because this is a question. Pourrions-nous commencer à manger? वी। Oui. देखो next वाला is we could go see a movie tonight. We could go. अभी again this is what could आ गया। प्रेजेंट टेंस वाला इम्परफेक्ट के साथ आएगा ना, सेकंड वाला। Imperfect क्यों आएगा? Why? ओह अच्छा ठीक है, नहीं नहीं इम्परफेक्ट कैसे है, सॉरी थोड़ा दूसरा ट्रेन में चले गया था। नहीं नहीं नहीं, मैं इट्स अ नहीं बोल रहा सजेशन। नहीं आएगा, मैं तो बोल रहा हूँ आया भी सकता है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तुम मुझे नहीं बताओ। मैं ये लॉजिक से बोल रहा था कि अब जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा था आपने, जब नियर फ्यूचर हो तो अनपरफेक्ट शब्द भी आता है। नहीं नहीं, क्या पढ़ा है? अम्पारफेक्ट नहीं है, फ्यूचर के लिए कभी भी नहीं आएगा। नो नो नेवर। अरे मतलब वो जो था कि जो एवरीडे हैबिचुअल चीजें हैं, हाँ, वो प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। टेंस वाला। हैबिचुअल तो चीजें में, तो यहाँ पे हैबिचुअल नहीं रहेगी। हैबिचुअल नहीं है ये बराबर। ओके, ठीक है। काफी वी कुड गो सी ए मूवी टुनाइट। सजेशन। तो सजेशन है भैया, तो सजेशन के लिए कौन सा टेंस यूज होता है? सेम पास्ट पूर कंपोज है, अम्पारफेक्ट या फिर कंडीशनल? कंडीशनल। कंडीशनल है भैया। तो न्यू पूर यू अगेन ये न्यू। पूरी नहीं, क्योंकि देख क्वेश्चन नहीं है अभी, स्टेटमेंट है, तो सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, नॉट वर्ब और सब्जेक्ट, इन्वर्जन नहीं करना, ओके। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर नो वाला जो था ना, पूर। उसमें मैंने आई यूज वन ऑफ द 3 ways टू फॉर्म द क्वेश्चन, बाय द वे आई डिड नॉट टेल यू दैट। हो टेस्ट सकता है वाला, नो पूर नो वाला। यहाँ पे लिखा है ऊपर इन्वर्जन यूज करना है, इसका नहीं लिखा है, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। नहीं तो हम सिंपली एस का भी बोल सकते थे, एस का प्लस द नॉर्मल सेंटेंस, एस का नो पूरियों ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अच्छा वो यूज नहीं करना है इसमें। नहीं वो यूज नहीं करना है, क्योंकि ऊपर लिखा है कि वो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर क्वेश्चन में आया तो मैं इन्वर्जन ही यूज करना है। तो ये रूल नहीं है, मतलब ये एक्सरसाइज के लिए यूज है बड़ा। ये एक्सरसाइज का ओके हाँ ठीक है। इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक टेस्ट है। क्वेश्चन नो पूरी और राइट है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक्सरसाइज में हमें बोला है हाँ कि वैसे। ओके गॉट इट ओके। देन वी हैव वी कुड गो सी अ मूवी टुनाइट। दिस इज अ सेंटेंस, नो ठीक है, पूरी। इन्वर्जन नहीं करूंगा, दैट्स क्लियर। तो nous pourrions वो go nous pourrions, वो नहीं होगा, आले आले, ऐसा। ठीक है, आले, क्योंकि कॉन्जुगेट नहीं करना है, SV1 V2। हम्म, nous आले pourrions हुआ। aller voir या regarder film ce soir, ठीक है। गॉट और ओके। फ्रेंच में टुनाइट को ce soir बोलते, वी डोंट से सेट नुई, डोंट, नाइट नहीं बोलते लिटरली, नाइट को नाइट नहीं बोलते हैं, इवनिंग बोलते हैं, ठीक है। हाँ yes। यहाँ पे आले वुआर की जगह रगार्दे भी हो सकता है, आई थिंक इट शुड रादर बी रगार्दे, बिकॉज वुआर इज लाइक लिटरली मूवी का पोस्टर देखो हाँ। देखने जा रहा हूँ, रगार्दे इज एक्चुअली टू वॉच, ठीक है। टू लुक यस। Yeah, Fabian. Then this one, what is this? What type of sentence is this? Could you teach me how to play the guitar? रिक्वेस्ट। It's a request, Fabian. तो request के लिए what tense do we use? प्रेजेंट कंडीशन। Present conditional. तो कैसे बोलोगे? Could you?
pour your new नो क्यों आया? नो नहीं आएगा, व्यू है। अरे सॉरी पूरे तू वो वो यूज करना है तो टीचर है बराबर TURI से पूरी ये वो पूरी देखो ये हमेशा साथ पूरी नहीं वो आते हैं, पूरी वो ब्ला ब्ला ब्ला, पूरी वो m'apprendre comment जुड़ने दे jouer गिटार जुए जी jouer ला गिटार। देखो इसमें तो मैं एक चीज बता दूं, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी इंस वो है, क्या बोलता है, नुआंस। जब कोई स्पोर्ट खेलना होता है ना, बड़ी अजीब सी चीज है फ्रेंच में, मेरे को बहुत वियर्ड लगती है। जब कोई स्पोर्ट खेलना होता है फ्रेंच में, ठीक है, जैसे फुटबॉल, तो मैं जुए के साथ प्रेपोजिशन यूज होता है, सिंपली नहीं बोल सकता je joue le फुटबॉल ना, गलत है, ठीक है। जुए में आप प्लस स्पोर्ट यूज होता है। जुए आ quelque chose। अब जैसे अगर वो ल फुटबॉल है तो उसका ट्रांसलेशन है जुए आ प्लस ल प्लस फुटबॉल। बट आ प्लस ल एग्जिस्ट नहीं करता है फ्रेंच में, इट टर्न्स आउट टू बी ओ। ओ AUX एयू है, एयू सिंपली, सिंगुलर ओ में AU एयू। ओके हाँ तो जुए ओ फुटबॉल, ये होता है स्पोर्ट्स के लिए। जब मैं स्पोर्ट्स खेलता हूं तो मैं प्रेपोजिशन आ यूज करता हूं, क्योंकि यहाँ ओके पे जो प्ले द गिटार है, इसमें मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा हूँ, ठीक प्ले है। सम गिटार वी आर प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। जब ओके इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की बात आती है तो फ्रेंच में आई यूज दिस प्रेपोजिशन द प्लस। टेला गिटार तो जुए द एंड जुए आ में बस यही फर्क है। खेलना, यस, इट्स लाइक प्लेइंग समथिंग, बट प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट वर्सेस प्लेइंग अ स्पोर्ट। ओके, अंडरस्टूड? याद यस रख लो, नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स गुड टू नो, ठीक है। यस ओके इसमें एक्चुअली कोई भी केस वो आया ही नहीं, and ये वाला करता है। फॉर एग्जांपल, आई एक्चुअली वांटेड टू टीच यू कि इसमें अब परफे वाला यूज केस आया नहीं। आई थिंक मे बी दिस डू दिस वन। एट दैट टाइम दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, उस टाइम पे दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, उनको समझ में नहीं आया। तो क्या है, पासे कंपोज है, परफे या कंडीशनल? पासे पासे कंपोज इट्स पासे कंपोज है, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया ना, कुड का ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश में कुड ही है, बट फ्रेंच में यस थ्री पार्ट, PU पी यू प्लस आवर ऑक्सिलरी नहीं बोलना है, या फिर परफे या फिर कंडीशनल, डिपेंडिंग ऑन यूज केस क्या है। ओके, ओके कुछ समझ में आ गया? यस दिस इज वन थर्ड ऑफ द चैप्टर दैट इज डन, ठीक है। शुड, ओके शुड मीन्स, तुम शुड तो तुम्हें पता ही है, सेम चीज है, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये है और ये है, इसमें क्या डिफरेंस है, हमने ऑलरेडी कर रखा है, कुछ नया नहीं पढ़ा। शुड हैव आई शुड ओके आई शुड हैव, जो सेकंड वाला केस है, साइड में लिखा हुआ है इन द राइट पोर्शन, दैट इज अ रिग्रेट। इट्स अ रिग्रेट इन द सेंस, रिग्रेट का क्या मतलब होता है? पश्चाताप पश्चाताप, एग्जैक्टली, पश्चाताप कर रहा हूँ, पश्चाताप ठीक है, पश्चाताप कर रहा हूँ जो चीज मैंने नहीं की, उसके लिए मैं कौन सा टेंस इज, व्हाट टेंस इज दिस? कर देना था तो पास पासे कंपोज है बट उसमें हम परफे के अंटेंगे हम पास से क्या नहीं है, बिगिनिंग किसकी है, और यू आर। और फ्यूचर एग्जाम्पल प्रेजेंट में तो क्या कौन प्रेजेंट सा कंडीशन? कंडीशनल पास कंडीशनल हाँ एग्जैक्टली, तो दिस इज नॉट प्रेजेंट कंडीशनल, ये वाला जो है दिस इज पास्ट कंडीशनल, क्योंकि इसमें पास्ट से पास कंडीशन पास्ट पार्टिसिपल भी लगा हुआ है, राइट। हाँ तो ओके हाँ पास पार्टिसिपल सॉरी तो मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक तो पहला चीज है, अभी थोड़ी देर पहले तक हम वर्ड कौन सा, वर्ब कौन सा पढ़ रहे थे, pouvoir, राइट। ओके यहाँ पे वी हैव शिफ्टेड नाउ टू द वर्ड devoir, ओके। व्हाट इज द ओके वर्ब?
devoir. And इसका just like pouvoir, इसका past participle was what? Pu. du इसका du होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे एक टोपी आ hat जाती है. This is प्रोनाउंसिएशन क्या है do due. Due. du Okay, जैसे pu वैसे due. यहाँ पे the thing I'm trying to teach you is I should versus I should have. ठीक है, पहला यूज केस इज आई शुड डू दिस. क्या क्या मैं इम्प्लाई क्या करना चाह रहा हूँ? व्हाट एम आई सेइंग? ये I सिंपली should have done that. नहीं, अभी हैव डन दैट वाले पे नहीं आ रहा हूँ. Oh, अच्छा, okay. आई शुड ड्रिंक सम कॉफी. आई एम फीलिंग स्लीपी. इट्स अ विश और अ सजेशन फ्रॉम माय एंड. ठीक है, Okay. और यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्लिगेशन आ जाता है. यू शुड डू योर होमवर्क टुनाइट. ठीक है, उसमें जब ऑब्लिगेशन के साथ सजेशन होता है, दैट हैज टू बी डन यूजिंग जस्ट अ मोमेंट. या दैट हैज टू बी डन यूजिंग दिस कंडीशनल प्रेजेंट विद devoir. Okay. ओके, जैसे आई विल गिव एग्जांपल्स. il dev थोड़ा इजी वाला, दिस वाला. vous devriez aller au concert. देखो, there are two sentences in English. You could go to the concert. You should go to the concert. Do they mean different things to you in your head? Yeah, it means different things, right? You could go to the concert. अगर तुम्हारी टांगे चल रही हैं, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास टिकट है, तो तुम जा सकते हो. You could. तुम्हारी मर्जी मतलब है. जाना ही चाहिए स्टूडियो के अंदर. तो you should go is a very entirely different thing when I'm trying to say something else. उसमें कुछ और ही बोल रहा हूँ. It's like तुम्हारा मन नहीं है, कोई बात नहीं, but you should go to the temple or you should go to the concert. Yes. Yeah. Okay. It's a strong suggestion in a way. It's a conseil. Conseil is like advice. When you're advising someone, you say this. ठीक Okay. है, Yes. तो कैसे कॉन्जुगेट किया मैंने? देखो, devoir को devriez, ये वाली कॉन्जुगेशन पढ़ो. je devrais, tu devrais, सिर्फ लेफ्ट Je वाले. devrais, tu devrais, il devrait, nous devrions, vous devriez, il devrait, elle devrait. ठीक है, समझ में आ गया? तो vous devriez aller au concert. You should go to the concert. Okay. But ये you should go to the concert future में, right? Maybe future past में भी, future anterior में भी, future sample जो भी है. But it is conjugated with imperfect. Des, AIS, AIS, AIT, IMS, IZ, AINT. As I told you, देखो तुम कंफ्यूज हो रहे हो दो टेंसेस में. What are those tenses? एक तो प्रॉपर प्योर imperfect है, ठीक है, एक कंडीशनल है. What is the difference between these two? imperfect में सिर्फ imperfect के conjugations बैठते हैं और कंडीशनल में दो बैठते हैं, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर वाला है और एक imperfect वाला है. तो सब मिलके प्रेजेंट कंडीशनल बनता है. देखो, ये दिक्कत है इसमें, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ. Just a moment, तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा. देखो, तुम कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि दोनों की जो एंडिंग्स है वो सेम है. दोनों की एंडिंग अम्पारफे की एंडिंग तो अम्पारफे की एंडिंग रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं होगी. बट जो अम्पारफे का स्टार्टिंग है, इज ऑल्सो अम्पारफे का रूट. वो अम्पारफे का रूट है, इज डिफरेंट फ्रॉम फ्यूचर सैंपल का रूट. ओह अच्छा, ओके. जैसे devoir के केस में DEVRAIS. देखो, इसमें अम्पारफे की एंडिंग तो है, यस. कैन आई से दिस इज अम्पारफे टेंस? नो, नॉट येट. अम्पारफे की एंडिंग दो टेंसेस में होती है. अम्पारफे में होती है एंड कंडीशनल में भी होती है. आई नीड टू लुक एट द रूट टू डिसाइड कि कौन सा टेंस है. एक बार आई नो कि इसकी एंडिंग अम्पारफे की है, there is one more thing I need to know to tell whether this is imperfect or is it conditional. I'll give you the imperfect conjugation, you will understand this then. This is the imperfect conjugation. Je devais faire.
ओके ठीक है। तो द वे में देखो AIS सेम है दोनों में, बट व्हाट इज डिफरेंट, DEVR एंड DEV। ओके, तो unless until I know what is the root of it, where is it coming from, I wouldn't know whether it's imperfect or it's conditional. Yes, ओके and ये तभी याद होगा जब तुम्हें imperfect की conjugation याद होंगी। तो बीच में अम्पारफे दोनों- कंजुगेशन क्या है? ठीक है, तो in that case it should be easy to identify whether it's imperfect, pure imperfect या फिर conditional है। और रूट का देखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो ऐसा नहीं फ्यूचर कि हर सैम्पलर का क्या है? देववार का फ्यूचर सैम्पलर सोचो, ये देखो तो मैं ये कंडीशनल प्रेजेंट है यहाँ पे, इसमें एक ही तो चीज चेंज करनी होती है। यहाँ पे जो ये एंडिंग है इट्स नॉट अम्पारफेक्ट, बट ये स्टार्टिंग जो है इट इज द सेम एज कंडीशनल। तो 3 टेंसेस ऐसा मान लो, देखो एक तुम्हारा है फ्यूचर सैम्पलर, ऐसे नहीं ऐसे ले लो, ठीक है। ये तुम्हारा है कंडीशनल, ये तुम्हारा अम्पारफेक्ट। ओके ये फिगर याद रखो, फ्यूचर सैम्पल का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंडीशनल का लास्ट पार्ट है, अम्पारफेक्ट का जो लास्ट पार्ट है वो कंडीशनल का फर्स्ट पार्ट है। बट अम्पारफेक्ट का फर्स्ट पार्ट अलग होता है एंड फ्यूचर सैम्पल का लास्ट पार्ट अलग होता है। समझ रहे हो, ये वेन डायग्राम याद रखोगे तो तुम्हें याद रहेगा टेंस। अम्पारफेक्ट, बीच में कंडीशनल एंड देन फ्यूचर सैम्पल। फ्यूचर सैम्पल का Okay. फर्स्ट पोर्शन इज द कंडीशनल का लास्ट पोर्शन, कंडीशनल का फर्स्ट पोर्शन इज अम्पारफेक्ट का लास्ट पोर्शन। यस और नो? कंडीशन का, हाँ कंडीशन का लास्ट वाला, अरे अम्पारफेक्ट का लास्ट वाला, कंडीशन का लास्ट वाला, एक्चुअली और फ्यूचर का फर्स्ट वाला, कंडीशन का भी फर्स्ट वाला। दिस इज द ऑपोजिट। आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, दिस इज द हाँ ऑपोजिट। वही मतलब नहीं समझ गया, भावना पूछ ली। नहीं, दिस इज करेक्ट, सॉरी। फ्यूचर का फर्स्ट वाला कंडीशनल का फर्स्ट आएगा, और अम्पारफेक्ट का लास्ट वाला कंडीशनल का लास्ट आएगा। अब वो डायग्राम बनाने में गलती है, बट दी वेन डायग्राम इज एक्यूरेट इन दैट सेंस, ठीक है। फ्यूचर का फर्स्ट वाला इज कंडीशनल का फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, इसका लास्ट वाला इसका लास्ट वाला, ठीक है। डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। दैट ओके, ये समझ में आ गया कंडीशनल अम्पारफेक्ट एंड फ्यूचर सैंपल में तीनों का डिफरेंस। ओके ओके ओके, जब ऑब्लिगेशन आ जाता है तो वी आर यूजिंग कंडीशनल व्हेन देयर इज रिग्रेट। आई टोल्ड यू, कल हमने गाना क्या था याद है, इल ओरे दू इयाले, यही था, इल ओरे दू le faire। ये सेंटेंस 4 बार 4 या 5 बार रिपीट होता है उस गाने में। il aurait dû le faire, he should have done it, ठीक है। तो उसने नहीं किया, बट हम रिग्रेट कर रहे हैं कि उसने नहीं किया, इसलिए मैं कौन सा टेंस यूज कर रहा हूँ, कंडीशनल। कंडीशनल पास्ट है विद शुड, ठीक है। ओके तो यहाँ पे टेंसेस थोड़े सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं। वुड इज वेरी इजी, तुमने पहले पढ़ रखा था, उसका टेंशन मत लो, जल्दी हो जाएगा। वी शुडंट टेक, आई थिंक यू शुड टेक अ वेकेशन। तो je pense que vous, यहाँ पे देख लो वो किसके साथ करना है, वो के साथ ही करना है, तू नहीं यूज करना है। vous devriez prendre des vacances, ओके ठीक है। मैं सिंपली ये भी लिख दूंगा तो भी सेम ही सेंटेंस बनेगा, vous devriez prendre des vacances, you should take vacations। और फ्रेंच में प्रॉब्लम है, वेकेशन ए वेकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हमेशा दे वाकांस होता है, तो प्लूरल में आएगा ये। सम वेकेशन, या सम वेकेशन, तो उसका ट्रांसलेशन है वेकेशन। एक है 10 दिन है 20 दिन है, डोंट मैटर, वाकांस, ठीक है। आई शुड हैव टॉक टू देम, शुड हैव टॉक टू देम, मैंने नहीं किया,
मेरे को कर लेना चाहिए था, कौन सा टेंस यूज होगा? कंडीशनल कौन सा, प्रेजेंट या पास्ट? जे देवप्रे जे सॉरी जे देव आई कुड हैव तो ऑक्सिलरी और ये यहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा फोर्थ वाले में? ओके आई शुड हैव टॉक टू देम। कौन सा टेंस होगा तो कंडीशनल ही आएगा ना बट कंडीशन जे में देव दो कंडीशन पढ़े ना, पास्ट एंड प्रेजेंट। ओके व्हाट आर यूज केस ऑफ प्रेजेंट कंडीशन एंड पास्ट कंडीशन? ओके आई शुड हैव टॉक टू देम पास्ट कंडीशन पास्ट क्यों? आई शुड हैव टॉक टू देम वो हो गया बात करनी थी हाँ बट इसमें मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, याद रखना तुम्हें। ओके मेरे को कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। ओके J'aurais dû to them leur parler, I think यही होगा, ठीक है। ओके ये वाला सिक्स्थ वाला, I shouldn't have called so early. I shouldn't have called so early. और ये ट्रांसलेशन नहीं, पहले सिंपली में हाँ कॉन्सेप्ट बताओ, प्रेजेंट कंडीशनल या पास्ट कंडीशनल? I should have called so early present past condition क्यों? मेरे को थोड़ा जल्दी बुला देना था बिकॉज मे बी रिग्रेट है आई शुड ना, मेरे को इतनी जल्दी कॉल नहीं करना चाहिए था, मैंने उसकी खराब कर दी, अब वो मेरे पे गुस्सा है। yes तो je n'aurais नौकरी pas dû दू téléphoner sito is this early, ठीक है। टेलीफोने भी बोल सकते हो, और टेलीफोने की जगह आपले, आई थिंक आपले लुई आपले सिंपली भी बोल सकते हो। आई थिंक टेलीफोन इज बेटर सिंपली, ठीक है। रिग्रेट है तो पास्ट और अगर नॉर्मल प्रेजेंट है तो फिर रिग्रेट है तो पास्ट सजेशन हाँ सजेशन है तो प्रेजेंट यू शुड, जब एडवाइस और सजेशन होगा तब तुम्हें क्या करना होगा, यूज प्रेजेंट कंडीशनल, ठीक है। और प्रेजेंट कंडीशनल का कैसा है कंजुगेशन का देखो सिंपली एक वर्ड है उसमें, ओके मतलब आई शुड हैव है तो फिर तो पास में ही है और आई शुड है तो फिर प्रेजेंट में ही ओ ओके यस। सजेशन एंड रिग्रेट ओके तो विद दिस आई विल स्टॉप इट हियर, कल वुड कवर करते हैं, ठीक है, एंड वी विल डू सम प्रैक्टिस एज वेल। उसके बाद सबजॉन्क्टिव है, वी विल टैकल दैट लेटर, बट आई विल वेरी 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 हाईली encourage कि तुम इसका कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज सी दैट, ठीक है। खिचड़ी पकना करने के लिए you will have to practice at home. Okay. All right. ओके गुड See you. Adama